Assalamu alaikum and very warm good morning to all. Welcome back students in my channel. Today we are going to continue for standard 12 subject accountancy part 2. The first chapter of part 2 accounting for share capital. Today's topic is share and share capital, equity share and preference share, and third topic is difference between preference share and equity share. This is second part of this chapter, so learn it properly and concentrate here. Let's start with important theoretical point of this chapter. Let's continue. Share and share capital, meaning, nature and types. Capital of company is called share capital, which can be divided into transferable small denominations. Each such unit of denomination is known as share. शेयर कैपिटल यानी कि जो इजीली ट्रांसफरेबल है और वो जो छोटे छोटे किस्तों में बनता है और उसे यहाँ पे शेयर बोला जाएगा. To raise capital, company issues prospectus as required by law and invites public to purchase its share. उनकी कंपनी अपनी कैपिटल इंक्रीज करने के लिए क्या करती है, शेयर को इश्यू करती है और उसके लिए वो प्रॉस्पेक्टस बनाती है और वो प्रॉस्पेक्टस के थ्रू जो पब्लिक होती है उसको शेयर परचेज करने के लिए इनवाइट करती है. Those who purchase share of company are called members or shareholders of company. जो शेयर परचेज करता है वो कंपनी का मेंबर बन जाता है या फिर शेयर होल्डर कहलाता है. As long as the shares are held by this person, he is called shareholder or co-owner of the company. For shareholders who has purchased or is in possession of the shares, indicate the proportion of his ownership in the company. Each share is allotted a distinctive member. Share is an asset which is movable and transferable. Share is an asset, one kind of asset which is movable and transferable. According to the Companies Act, a company may issue two types of shares, preference shares and equity shares. जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से कंपनी टू टाइप्स के शेयर इश्यू करती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर. फर्स्ट यहाँ पे है प्रेफरेंस शेयर. प्रेफरेंस शेयर इज वन विच गिव preferential right to its owner for receiving the dividend at a specified rate before any dividend paid to equity shareholder. प्रेफरेंस शेयर यानी ऐसे शेयर है जो जिनके शेयर होल्डर है उनको डिविडेंड लेने की फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है और किससे पहले, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड लेने की जो प्रायोरिटी उनको पहले दी जाती है उसको यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर बोला जाएगा. When the company goes into liquidation, the preference shareholder has the preferential right for repayment of capital before the equity shareholder. इसी तरह से जब कंपनी लिक्विडेशन में हो जाती है, कंपनी ओवरऑल लॉस में जाती है, उस टाइम पे शेयर होल्डर से पहले जिस शेयर होल्डर को अपनी कैपिटल रिडीम की जाती है, वापस दी जाती है, उसे यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोला जाएगा. टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. First number, cumulative and non-cumulative preference share. In case of cumulative preference shares, if in any year the dividend or preferences share is not paid due to insufficient profit, such areas of dividend shall be paid together with current year dividend in the year when there is sufficient profit. As against this, in case of non-cumulative preferences, such areas of dividend are not accumulated and are not paid in future. Cumulative यानी ऐसे प्रेफरेंस शेयर कि सपोज कोई कंपनी को करंट ईयर में लॉस हुआ है तो वो डिविडेंड उसको कंपनी नेक्स्ट ईयर जब कंपनी को सफिशिएंट प्रॉफिट होगा तब पेड करेगी, तो वो
जो जिस शेयर को राइट होता है उसे यहाँ पे कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोला जाएगा। और नॉन कम्युलेटिव में कंपनी को लॉस होता है तो फ्यूचर में कंपनी वो डिविडेंड पेमेंट नहीं करेगी तो उसे यहाँ पे नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोला जाएगा। नाउ रिडीमेबल एंड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इफ द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज टू बी रीपेड बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ द stipulated period or after giving proper notice to the holder of the preference shares, such shares are called redeemable preference shares। ऐसे शेयर जो उसकी जो टाइम पीरियड है उसके बाद जो कंपनी के ओनर है वो शेयर होल्डर को वो शेयर की अमाउंट रिडीम कर देंगे यानी वापस दे देंगे, रीपेड कर देंगे तो उसे यहाँ पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोला जाएगा। अ प्रेफरेंस शेयर विच आर रिडीम्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी आर कॉल्ड इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। आफ्टर द implementation of Companies Act 2013, Company Limited by share does not issue irredeemable preference shares। और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर यानी कंपनी जब तक लिक्विडेशन में नहीं आएगी, ओवरऑल नादार नहीं हो जाएगी, तब तक जिसकी अमाउंट वापस नहीं दी जाती वो शेयर को इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोला जाएगा। यानी जो कंपनी की ओवरऑल जो उसकी एज है तब तक उसे जिस शेयर की अमाउंट वापस नहीं दी जाती उसे यहाँ पे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोला जाएगा। और नाउअडेज जो एक्ट बना है कंपनी का 2013 का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है वो कंपनी यहाँ पे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर उसको इश्यू नहीं कर सकती। Now number 3, participating and non-participating preference share। Preference shareholders who hold participating in preference share get fixed rate of dividend as decided by the company। In addition to this, they also have a right to participate in surplus profit remaining after distribution of specified dividend to equity shareholders subject to terms of participation। In the event of winding up to the company, if after paying the capital amount of both the preference and equity shareholder there is still some surplus left, such shareholders are entitled to receive a proportion of surplus। This type of preference shares are called participating preference shares। Participating यानी बहुत सी ऐसी कंपनी होती है और जिसमें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को तो पहले ही उसको डिविडेंड दे दिया जाता है, बट कंपनी को इतना प्रॉफिट होता है कि वो प्रॉफिट के साथ कंपनी को उसके साथ जब कंपनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट करती है शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर को वो प्रॉफिट डिविडेंड दे दिया जाता है। उसके बाद भी जब प्रॉफिट बचता है तो उसमें जो अमाउंट होती है एक्स्ट्रा प्रॉफिट की उसमें जिस शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा अमाउंट एक्स्ट्रा डिविडेंड या एक्स्ट्रा रेट दिया जाता है जो इस शेयर में उसे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोला जाएगा। Preference shareholder of non-participating preference share get only a fixed rate of dividend and do not carry a right to participate in the surplus profit of any surplus capital। और जिस शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होता है उसमें उसको अमाउंट पार्टिसिपेट नहीं किया जाता वैसे शेयर होल्डर को यहाँ पे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर बोला जाएगा। कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, द प्रेफरेंस शेयर विच कैन बी कन्वर्टेड पार्शियली और फुल्ली इनटू इक्विटी शेयर्स एज पर एग्रीड टर्म्स एट द टाइम ऑफ इश्यू आर नोन एज कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। ऐसे शेयर जो उसके टाइम लिमिटेशन के बाद इक्विटी शेयर होल्डर में कन्वर्ट हो जाएंगे फुल्ली या पार्शियली, तो ऐसे शेयर को कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर बोला जाएगा। The preference shares which are not convertible into equity share are known as non-convertible preference shares। Usually the preference shares are non-convertible। ऐसे शेयर जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते तो ऐसे शेयर को यहाँ पे नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर बोला जाएगा और यूजुअली इसी टाइप के प्रेफरेंस शेयर होते हैं। नाउ सेकंड नंबर शेयर इक्विटी शेयर और ऑर्डिनरी शेयर। द शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर आर नोन एज इक्विटी शेयर। जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स इन द कंपनीज मीटिंग। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर विच इज डिसाइडेड बाय बोर्ड ऑफ directors and approved by the shareholders in the general meeting is given only out of the profit remaining after distribution of dividend on preference shares at fixed rate।
ऐसे शेयर है जो ऐसे शेयर होल्डर है, इक्विटी शेयर होल्डर ऐसे शेयर होल्डर है जिसको जो कंपनी की मीटिंग है उसमें वोटिंग देने का राइट्स होता है, या फिर उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसाइड किए गए हुए रेट के हिसाब से उनको डिविडेंड दिया जाता है। और जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है जिसमें जो कंपनी के लिए कोई ऐसी डिसीज़न लेना होता है तब उनको भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। ऐसे शेयर होल्डर जिसके पास होते हैं उसे इक्विटी शेयर होल्डर बोले जाते हैं। और इक्विटी शेयर होल्डर में डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं होता। जब प्रॉफिट होता है कंपनी को तब लास्ट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसमें वो कितने % से उसको डिविडेंड देना पड़ेगा वो यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। Company gives a dividend on equity shares every year on the basis of current year's profit of the previous years, accumulated reserves, possibilities of future profits, and also management policy of the company. At the time of liquidation of company from the balance funds, equity shareholders have right of repayment of capital only after returning preference share capital. लिक्विडेशन के टाइम जब कंपनी को जो कंपनी क्लोज की जाती है तब सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसकी कैपिटल दी जाएगी। उसके बाद जब अमाउंट बचेगी तभी इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी अमाउंट दी जाएगी। इक्विटी शेयर कैपिटल इज नोन एज प्रिंसिपल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। अंडरलाइन इट। विच शेयर इज नोन एज प्रिंसिपल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी? Equity share capital is known as principal share capital of the company. According to current provision of the Companies Act, the equity share should have a minimum face value of ₹1. In the present scenario, most of the company have face value of each share is ₹1 or 10 or 100. नया जो एक्ट बना है 2013 का उसमें इक्विटी शेयर की मिनिमम प्राइस ₹1 होनी चाहिए। तो नाउअडेज जो कंपनी होती है वो अपने शेयर कौन से रुपीस में उसको इश्यू करती है, ₹1 में, ₹10 में या फिर 100, और इसी तरह से उसके मल्टीपल में उसको इश्यू किया जाता है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर क्या है और प्रेफरेंस से क्या है वो आपको समझ में आया। नाउ हम उसके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। ये भी एग्ज़ाम में उसके बीच का जो डिफरेंस है वो भी आता है, तो अच्छी तरह से लर्न करना स्टूडेंट्स। Basis of distinction: preference shares, equity shares. Rate of dividend: dividend on preference share are paid at a fixed rate. preference share पे dividend का rate fix होता है जब equity share पे नहीं होता। The rate of dividend on equity shares is not fixed. It may vary from year to year depending upon the availability of profit. Profit जितना होता है उसके हिसाब से उनका dividend यहाँ पे fix किया जाता है। Arrears of dividend: if dividend is not paid on cumulative share in any year, the arrears of dividend is paid against company profit in future. Arrears of dividend on equity shares cannot be accumulated and so it is not paid against company's profit in future. जो कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर है वो शेयर होल्डर को ये साल सपोज प्रॉफिट नहीं हुआ है कंपनी को, तो फ्यूचर में जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तब वो डिविडेंड की अमाउंट पे की जाएगी। बट इक्विटी शेयर होल्डर में ऐसा नहीं है। ये साल लॉस हुआ है तो डिविडेंड नहीं दिया तो उसको फ्यूचर में नहीं दिया जाएगा। नाउ नंबर 3, दे हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उनको फर्स्ट प्रायोरिटी के फर्स्ट डिविडेंड पेमेंट की प्रायोरिटी दी जाती है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड दिया जाता है उससे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाता है। और इसी तरह से पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज मेड आफ्टर द पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी प्रेफरेंस डिविडेंड के बाद इक्विटी डिविडेंड दिया जाता है लास्ट में। नाउ नंबर 4, preferential right as to payment of capital. Preferences shareholders have a right to return of preference share capital in the case of winding up before any capital is returned to equity shareholder. जिस तरह से डिविडेंड का सिनेरियो है उसी तरह से जो शेयर कैपिटल है उसका सिनेरियो है। जब कंपनी लिक्विडेशन में जाती है तब फर्स्ट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल रिटर्न की जाती है और लास्ट में एट लास्ट इक्विटी शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल रिटर्न की जाती है। इक्विटी शेयर कैपिटल इज पेड ओनली व्हेन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज पेड आउट फुल्ली। नाउ नंबर 5, वोटिंग राइट्स।
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव एनी वोटिंग राइट्स और इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट्स। यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग है उसमें वोटिंग देने का कोई राइट होता नहीं है, तो उसके सामने जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसको वोटिंग करने का यहाँ पे राइट मिलता है। नाउ नंबर 6, राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। दे डू नॉट हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी एंड दे हैव फुल राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको मैनेजमेंट की कोई भी चीज़ में उनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता। इसी तरह से उसके टोटली अगेंस्ट जो इक्विटी शेयर होल्डर होता है उसे फुल्ली मैनेजमेंट की कोई भी डिसीजन में पार्टिसिपेट करने का वहाँ पे राइट मिलता है। तो ये यहाँ पे हमने इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बीच का जो डिफरेंट था वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। स्टूडेंट्स, ये आपको नोटबुक में लिखना है। इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन स्टडी। अस्सलाम वालेकुम।